Let's just show you for a bit, because already politics has broken out in Parliament over Operation Sindoor. But let's first show you what happened as part of this debate. अध्यक्ष महोदय, कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। क्या ये जरूरी नहीं कि जेट गिरे, पर क्यों गिरे, क्या गलतियां हुई, वो महत्वपूर्ण है। संख्या महत्वपूर्ण नहीं सर। 35 ही राफेल है देश में, 35 ही राफेल है। अगर उनमें से कुछ गिरे भी तो देखिए सर, मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ी क्षति हुई। रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। कहीं ना कहीं एक सरकार में एक अहंकार आ चुका है। इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी जो फ्रेमवर्क है, एस्टैब्लिशमेंट है, जो लोग हैं जो निर्णय लेते हैं इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की, आज उनमें एक अहंकार आ गया है कि चाहे जितनी भी बड़ी गलती हो उन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन आज हम सवाल उठा रहे हैं। नैतिक जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे नहीं छुप सकते। We highlighted that 9 sites had been targeted, and we said that our actions are focused, measured, and non-escalatory in nature. And we were living up to the commitment that those responsible for this attack will be held accountable. Today, when I hear many questions from across the aisle, I want to say, which one of you imagined that Bhavalpur and Muridke would be brought down the way it was? Which one of you thought? When did you even think of it during your tenure? Did it even cross your mind? In fact, on the contrary, you ruled it out after 26/11. Warnings about China, cautions about China, China is planning this, China is planning that. But sir, I want to remind this House, Doklam crisis was on. The leader of opposition decided to get a briefing from whom? Not from the government, not from the emir, from the Chinese ambassador. He took his briefing from the Chinese ambassador when our military was confronting the Chinese military in Doklam. Home Minister Amit Shah is scheduled to speak tomorrow at 12, but he did get up to intervene aggressively on 2 occasions today. In case you missed it, here it is. विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। उनके स्पीकर जब बोल रहे थे, हम पूरे धैर्य से सुने। मैं बताऊंगा कितनी असत्य बातें बोली गई कल, परंतु फिर भी असत्य को भी हम हलाहल समझकर पी गए। अब ये सत्य भी नहीं सुन पाते हैं। Okay, and the politics has begun. The quest for proof and questioning the timing of the Operation Mahadev encounter has begun. You can always trust our politicians to begin questioning the timing of an encounter as if the Indian Army chooses when to actually kill terrorists. Well, Congress MP Imran Masood has just gone on the record to question the timing. He says, what were they doing for 3 months? Imagine a member of parliament casting aspersions on the Indian Army and saying, what were they doing for 3 months? The BJP has hit back at this Congress doubter MP. Take a look at this. The BJP MP says the Congress is politicizing Pahalgam. The Congress has hit back and says, isn't it too much of a coincidence that these terrorists were killed today while the Operation Sindoor debate begins? Take a look at this face-off. अरे रक्षा मंत्री बोल रहे हैं, रक्षा मंत्री को पता नहीं कब मार गिराया।
रक्षा मंत्री के बोलने के बाद गौरव गोगोई जी ने सवाल उठाया तो आपने 1 मिनट के अंदर मार दिया आतंकवादी। कहाँ से ले आए आप? कौन था वो आतंकवादी? क्या उसका कनेक्शन है? उस कनेक्शन को कैसे साबित हुआ कि आपने फटाक से इधर बोला? गौरव जी ने आपने फटाक से बता दिया कि हमने एक मार भी दिया। इतना तेज नेटवर्क है। अगर इतना ही तेज नेटवर्क था तो पीओ के ऊपर तिरंगा फहरता हुआ होता। पीओ अभी तक ये सवाल उठा रहे थे कि पहलगाम के मास्टरमाइंड या जो टेररिस्ट थे वो कहाँ गए। अब अगर सिक्योरिटी फोर्सेज लगातार जो ट्रैक कर रही थी तो आज अगर उनका इनकाउंटर हुआ तो एक तरह से जहाँ हमने पाकिस्तान में उनके सारे हेडक्वार्टर्स को नेस्तनाबूद किया, आज उनको भी अंजाम में पहुंचा दिया जो पहलगाम के मतलब टेररिस्ट है या उनके मास्टरमाइंड है। तो अब इस पर सवाल उठा रहे हैं। इससे साफ है कि वो केवल राजनीति कर रहे हैं।